آج شادی کے بعد ہمارا بھابھی کے ساتھ پہلا دن تھا اور میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میرا اکلوتا بھائی گھر میں میرے لیے بھابھی لے کر آیا تھا۔ اماں نے آج تک جتنی بھی بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھی تھی، بھائی ان سب میں سے زیادہ حسین اور خوبصورت لڑکی لائے تھے۔ بھابھی کی موٹی موٹی آنکھیں اور لمبے بال بھابھی کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ کرتے دکھائی دیتے۔ بھابھی کا حسن اور لڑکیوں سے بالکل الگ تھا، اس کی ایک اپنی ہی کشش تھی۔ اماں نے بہت دیکھ بھال کر کے اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ ڈھونڈا۔ شادی کے دوران ہر کوئی اماں سے اماں کی بہو کی تعریف کرتا نظر آ رہا تھا، ہر طرف خوشی کا سامان تھا۔ ہمارا گھر ابھی تک بھی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ میں اور اماں بیٹھی شادی کے دن کے بارے میں بہت بات کر رہی تھی۔ اماں اپنا گھر دلہن کی طرح سجا دیکھ کر خوش ہونے کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ نہ جانے اس موقع پر اماں کو کس کی یاد ستا رہی تھی۔ اماں ابا کچھ یاد کر کے رونے لگی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آپ کی برسوں پرانی تمنا آج پوری ہو گئی ہے۔ آپ نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی کیا۔ کتنی دھوم دھام سے اپنے بھائی کی شادی کی ہے۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ سب فنکشن اتنے اچھے سے ہو جائیں گے۔ میں اماں کو خوشی سے بتانے لگی، اماں ہر بندہ ہی بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ سب لوگ بھابھی کی خوبصورتی کو لے کر خسر پھسر کر رہے تھے۔ ساتھ والی آنٹی سکینہ تو سب انتظامات دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ یہ کہتی دکھائی دے رہی تھی کہ کیا قسمت پائی ہے رضیہ نے، کس قدر خوبصورت بہو لے کر آئی ہے۔ آنٹی سکینہ تو بھابھی کو سٹیج پر دیکھ کر حیران ہی رہ گئی تھی اور مجھے روک کر کہنے لگی، ارے بات سنو، تم لوگوں نے یہ چاند سا ٹکڑا کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ تم لوگوں کی تو قسمت ہی کھل گئی ہے۔ مجھے آنٹی سکینہ کی باتیں سن کر اماں کی طرح ہنسی آ رہی تھی اور افسوس بھی ہو رہا تھا۔ اماں آپ نے کتنا آنٹی سکینہ سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا، لیکن وہ ہمیشہ یہ کہہ کر آپ کو انکار کر دیتی کہ آپ کے گھر میں تو 2 وقت کا کھانا مشکل سے پورا ہوتا ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو کیوں کر دوں گی؟ میں نے اماں سے کہا کہ اب آنٹی سکینہ بہت بری طرح سے پچھتا رہی تھی اور لوگوں سے کہتی پھر رہی تھی کہ کاش میں نے رضیہ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہوتا، آج تو میری بیٹی بھی اسی طرح راج کر رہی ہوتی۔ اماں میری باتیں غور سے سن رہی تھی، لیکن اماں کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ میں اماں کو ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی اور اماں تھی کہ اداس بیٹھی تھی۔ تبھی میں نے اماں سے رونے کی وجہ جاننا چاہی تو اماں نے مجھے روتے ہوئے کہا کہ کاش تمہارے ابا زندہ ہوتے تو وہ بھی آج اپنے بیٹی کی شادی دیکھ کر، اس کا گھر آباد ہوتا دیکھ کر کس قدر خوش ہوتے۔ میں نے اماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے اماں کو اپنے سینے سے لگایا اور اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اماں، ابا اب بھی کہیں نہ کہیں ہمارے گھر کی ساری خوشیاں دیکھ رہے ہوں گے، ان کی دعائیں کہیں نہ کہیں ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہیں۔ آپ ایسے مت روئیں، آج تو خوشی کا دن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بہو کی خوبصورتی کے چرچوں کے ساتھ ساتھ شادی کو لے کر بھی ہر بندہ خوش ہو رہا تھا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ رضیہ نے بہت اچھا اہتمام کیا، گھر کی ڈیکوریشن دیکھ کر ہی ہر بندہ حیران تھا۔ اماں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ اتنے اچھے طریقے سے اس فرض کو انجام دے سکیں گے، لیکن خدا تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ جس نے ہماری لاج رکھی اور ہمارے ہر کام میں ہماری مدد کی۔ اماں میری بات سن کر مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور دوسرا پیر بابا کی دعائیں بھی تو ہمارے ساتھ تھی۔ میں حیران اماں سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آخرکار شادی پر اتنا خرچہ کس نے کیا ہوگا۔ تبھی اماں نے مجھے بتایا کہ تمہارے بھائی کا کام اس مہینے بہت اچھا ہوا تھا، پیر بابا سے دعا کروائی تھی، جس کی وجہ سے تمہارے بھائی کا یہ مہینہ بہت اچھا گزر گیا۔ تبھی میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اماں، بھائی نے تو میرے کپڑوں میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، میں نے جس سوٹ پر ہاتھ رکھا بھائی نے وہی سوٹ مجھے دلایا۔ میں تو بہت خوش ہوں، میں نے شادی کو بہت انجوائے کیا۔ میری سہیلیاں تو میرا پہناوا دیکھ کر ہی حیران ہو گئی تھیں، سب میرے کپڑے دیکھ کر کہنے لگیں کہ تم نے شاپنگ بہت زبردست کی ہے۔ میں تو اپنے گھر کی تعریف کے ساتھ اپنی تعریف سن کر بے حد خوش ہو رہی تھی۔ تبھی اماں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا کہ خدا تعالیٰ نظر بد سے اس گھر کی خوشیوں کو بچا کر رکھے۔ اتنا کہتے ہوئے اماں پھر سے کچھ سوچنے لگی۔ میں نے اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اماں سے پوچھا کہ اب کیا سوچ رہی ہیں؟ تبھی اماں نے کہا کہ مجھے تمہارے بھائی اور بھابھی کو سلام کروانے کے لیے پیر بابا کے پاس لے کر جانا ہوگا۔ اب خدا جانے تمہاری بھابھی کو یہ بات پسند آئے گی یا نہیں۔ میں نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بھابھی کو یہ بات کیوں بری لگے گی، بھابھی کا رشتہ بھی تو پیر بابا نے ہی کروایا ہے۔
اس بات کا تو صاف مطلب ہے کہ بھابھی کے گھر والے بھی پیر بابا کو بہت مانتے ہوں گے، اسی لیے تو بھابھی کے گھر والوں نے بھابھی کے رشتے کا پیر بابا سے کہا ہوگا۔ اماں میری بات سن کر تسلی میں آ گئی اور کہنے لگی، ہاں یہ بات تو میں نے سوچی نہیں تھی کہ یہ تو رشتہ بھی پیر بابا نے ہی کروایا ہے۔ خیر تم جلدی سے اٹھو اور اپنی بھابھی کے تیار ہونے میں ان کا ہاتھ بٹا دو، کیونکہ ابھی سب عزیز و اقارب اور گاؤں والے تمہاری بھابھی کی منہ دکھائی کی رسم کرنے کے لیے آتے ہوں گے۔ جلدی سے گھر کی صفائی ستھرائی کرنے کے ساتھ اپنی بھابھی کا حال احوال بھی جان لو، اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ میں تو کب سے انتظار میں تھی کہ کب آپ مجھے کہیں کہ بھابھی کو بلا کر لاؤ، اور کب مجھے اپنی بھابھی کا چاند سا چہرہ دیکھنے کو ایک بار پھر سے موقع ملے۔ میں یہ کہتے ہوئے اماں کے قریب سے اٹھی، تبھی اماں نے مجھے آواز دیتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے گھر کی صفائی ستھرائی کر لو، لوگ آتے ہی ہوں گے، پھر بعد میں جا کر بھابھی کو بھی جگا لینا۔ میں بہت خوش تھی کہ میں گھر کا سارا کام تیز تیز کرنے لگی، کیونکہ مجھے اپنی بھابھی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نے گھر کو اچھے سے صاف کر لیا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی اور گھر صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی اماں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اب اپنی بھابھی سے پوچھ لو کوئی کام تو نہیں ہے، اور اپنے بھائی اور بھابھی سے کہو کہ تیار ہو جائیں، ابھی سب منہ دکھائی کی رسم کرنے کے لیے آتے ہی ہوں گے۔ میں نے تیز تیز قدم بھابھی کے کمرے کی طرف اٹھائے کہ مجھے کمرے سے بھائی نکلتا دکھائی دیا۔ میں تو بھائی کو دیکھ کر بے حد خوش تھی، میرا بھائی بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ شادی کے بعد سے بھائی کے چہرے پر بھی رونق دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے آج سے پہلے اپنے بھائی کو اس طرح پر رونق نہیں دیکھا تھا جس طرح آج میرے بھائی کا چہرہ چمک دھمک رہا تھا۔ میں نے بھائی سے سلام کرتے ہوئے کہا، تیار ہو جائیں بھائی، آج آپ کو میری رسم بھی ادا کرنی ہے، آج میری ہتھیلی گرم ہونے والی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے بھائی سے کہا تھا۔ بھائی نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا کہ سب کچھ تمہارا ہے، پریشان کیوں ہوتی ہو، جتنی چاہے اتنی رسم کر لینا۔ اپنی بھابھی کے پاس اپنے کچھ سامان کی ضرورت ہے، اسے تیار ہونے میں اس کی مدد کرو۔ میں بھائی سے یہ کہتے ہوئے بھابھی کے کمرے میں جانے لگی کہ میں اپنی چاند سے بھابھی کے پاس ہی جا رہی تھی۔ بھائی بھی بے حد خوش تھا۔ پھر اچانک سے جب میں بھائی کے کمرے کے پاس پہنچی تو مجھے ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی، کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی پراسرار جگہ پر آ گئی ہوں۔ میں اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی، مجھے کچھ ایسا دکھائی نہیں دے رہا تھا جس سے مجھے لگے کہ میں کسی پراسرار جگہ پر آ گئی ہوں، مگر جب میں بھابھی کے کمرے کے پاس پہنچی تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ مجھے ہر چیز ایسے ہی عجیب و غریب محسوس ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سا احساس دل میں جگہ بنا رہا تھا، میرا سر اور کندھے وزنی ہونے لگے تھے۔ میں سب باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی۔ بھائی کے کمرے کا میں نے دروازہ کھولا تو بھابھی آئینے کے سامنے ہی کھڑے تھے، وہ سج سنور رہی تھی۔ میں بنا شور کیے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی، اور جیسے ہی میں نے آئینے میں دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بھابھی تو… میرا نام زرنش ہے، میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میں سیالکوٹ شہر کے گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ میرے ابا ایک معمولی سے موچی تھے۔ ابا کی دکان تو نہیں تھی، مارکیٹ میں کسی کی دکان کی دیوار کے ساتھ ابا نے بچھونا بچھا رکھا تھا، اور وہیں اپنا تمام تر سامان رکھتے ہوئے ابا موچی کا کام کرتے۔ گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ اماں اور ابا کی شادی کو 3 سال کا عرصہ ہونے کو تھا، مگر اماں نے ابا کو ابھی تک اولاد کی خوشخبری نہیں دی تھی۔ اماں اور ابا بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے نظر آتے۔ کئی لوگ تو ابا سے کہتے کہ دوسری شادی کر لو، تمہیں اولاد دوسری بیوی سے ہو جائے گی۔ اماں جب لوگوں کی ایسی باتیں سنتی تو بے حد پریشان ہو جاتی اور رو رو کر ابا سے کہتی، مجھے چھوڑنا مت، دوسری شادی مت کرنا۔ ابا اماں کو تسلی دیتے اور کہتے کہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہیں چھوڑوں یا دوسری شادی کروں، بے فکر رہو۔ ابا کے پاس اتنے روپے نہ ہوتے کہ ابا اماں کو کسی اچھے ڈاکٹر کو ہی دکھا لیتے۔ اسی آس پر 5 سال گزر گئے کہ ہو جائے گی اولاد، مگر نہیں ہوئی۔ انہیں دنوں گاؤں میں میلہ لگا تھا جو ہر 5 سال بعد لگا کرتا تھا۔ اس میلے میں ہر سال ایک پیر بابا آیا کرتے تھے جو اپنی روحانی طاقت سے پریشان لوگوں کی مدد کیا کرتے۔ اماں کو جب پتہ چلا کہ اس بار بھی پیر بابا آئے ہیں تو اماں وقت ضائع کیے بغیر ہی ابا کو لے کر پیر بابا سے ملنے چلی گئی۔ پیر بابا نے اماں کو دم کیا اور 30 الائچیاں دیں اور کھانے کا طریقہ سکھاتے ہوئے پیر بابا نے اماں اور ابا کو تسلی دی کہ اولاد مل جائے گی، اور پہلی اولاد تو میٹھی مراد ہی ہوگی،
अम्मा ये सब सुनकर बहुत खुश हो गई थी और घर चली आई। अगले ही दिन अम्मा ने अब्बा से कहा कि अब घर के रिस्क के लिए भी दुआ करवा लें। जैसे ही अब्बा पीर बाबा के पास दुआ करवाने के लिए गए तो अब्बा को मालूम हुआ कि पीर बाबा तो जा चुके हैं और अब न जाने वो दोबारा कब लौटेंगे। अम्मा ने जब ये सुना तो बहुत अफसोस करने लगी। तभी अब्बा ने अम्मा से कहा कि पता नहीं पीर बाबा की औलाद के लिए की गई दुआ कबूल होगी या नहीं। अम्मा अब्बा से नाराज़गी का इजहार करती और कहती कि मुझे यकीन है अल्लाह ने चाहा तो औलाद ज़रूर होगी। अम्मा ने 1 माह इलायची इस्तेमाल की और फिर एक दिन अम्मा को पता चला कि अम्मा उम्मीद से हैं और अब्बा की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहे थे। अम्मा और अब्बा की शादी को 6 साल होने को थे जब अब्बा और अम्मा को अल्लाह ने औलाद की खुशी से नवाजा था। वैसे 2 सालों में हम 2 बहन भाई अब्बा और अम्मा की खुशी का सबब बने थे। भाई बड़े थे और मैं छोटी अकलौती बहन और बेटी होने की वजह से बहुत लाडली थी। अब्बा अम्मा और भाई मुझ पर अपनी जान निछावर करते नजर आते। मैं पढ़ने की बहुत शौकीन थी लेकिन घर के हालात की वजह से स्कूल में दाखिला नहीं ले सकी। भाई पढ़े तो नहीं थे लेकिन अपने एक दोस्त के साथ कारोबार सीखने लगे थे। भाई का दोस्त जो कि चावलों का कारोबार करता था, भाई भी उसी के साथ उसके शेल्टर में ही सारा दिन गुजार देते थे। महीने के आखिर में भाई का दोस्त भाई को कुछ उजरत दे दिया करता। ऐसे भाई की तरफ से भी घर को चलाने में कुछ मदद मिल जाया करती। घर के हालात ऐसे नहीं थे कि एक वक्त से ज़्यादा खाने को आसानी से मुयस्सर आ जाता। गुर्बत हमारे घर में जैसे डेरा जमाए बैठे थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। हम लोग सब्र और शुक्र करके ज़िंदगी के हसीन पल प्यार मोहब्बत से गुजारते चले गए। आज सुबह में गहरी नींद सोई हुई थी जब अम्मा ने मुझे जगाते हुए कहा, उठ जाओ, आज तुम्हारे भाई को कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं, घर की सफाई सुथराई कर लो। मैं हड़बड़ा कर उठी लेकिन जब अम्मी ने मेरी भाभी लाने का जिक्र किया तो मैं खुशी खुशी घर साफ करने लगी। मैंने कुछ ही देर में पूरा घर साफ सुथरा कर लिया था। घर शीशे की तरह चमक रहा था और मैं मेहमानों के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। भाई भी अभी तक शेलर से वापस नहीं आए थे। कुछ देर ही गुजरी थी कि साथ वाली आंटी सकीना घर के अंदर दाखिल होती हुई नजर आई। मैंने फ़ौरन अम्मा से कहा कि आंटी सकीना आ रही हैं, अब आपसे सारी बातें पूछेंगी। खुदा के लिए आज आंटी सकीना को भाई के लिए आने वाले मेहमानों के बारे में मत बताना। न जाने किस नीयत से पूछती है कि मेहमान ही पलट कर नहीं आते। मेरी बात सुनते ही अम्मा मुझे डांटने लगी और कहने लगी, बहुत बुरी बात है, वो तुम्हारी खाला की तरह है और तुम इस तरह की बातें उसके लिए कर रही हो। अम्मा अब भी मुझे ही डांट रही थी कि आंटी सकीना सर पर आकर खड़ी हो गई। तभी अम्मा से कहने लगी, अरे बहन, आज तो घर बड़ा साफ सुथरा कर रखा है, क्या आज भी शकील को कोई देखने आ रहा है? मैंने अम्मा को हल्के हाथ से चुटकी काटते हुए ना में सर हिलाने को कहा। आंटी सकीना ने मुझे इशारा करते देख लिया और मुझसे कहने लगी, भला मुझसे क्या छुपाना, मैं तो साथ वाले घर में रहती हूँ, हर बात की खबर तो मुझे मिनटों में ही मिल जाती है। फिर भी तुम्हें मुझसे छुपा कर अगर कुछ अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, ना बताओ, कुछ देर में मुझे पता तो चल ही जाएगा। मैं आंटी सकीना की बात सुनकर शर्मिंदा सी हो गई। तभी मैंने आंटी सकीना से कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये तो मैं भी जानती हूँ आंटी कि आपका घर हमारे घर के बिल्कुल साथ है और हमारे घर में खबर बाद में पहुँचती है, पहले तो आप तक ही पहुँच जाती है। आंटी सकीना हैरान होकर मेरा मुंह देखने लगी और कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी मैंने बात को टालते हुए कहा कि मतलब ये कि आपके घर का दरवाज़ा हमारे घर के दरवाजे से पहले आता है और आते जाते आने वाला हर मेहमान आपको ही पहले दिखाई देता है, क्योंकि अक्सर ही आपके घर का दरवाज़ा खुला होता है। आंटी सकीना बात को समझी नहीं थी और मेरी बात सुनकर हाँ में सर हिलाने लगी। तभी अम्मा ने बताया कि हाँ बहन, शकील को आज लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए घर को साफ सुथरा करवाया है। ये बात सुनते ही आंटी सकीना ने फिर से वही जली कुटी बातें सुनाना शुरू कर दी थी। उनका कहना था कि आप जैसे घर में कोई अपनी बेटी कैसे देगा जहाँ एक वक्त का खाना भी बमुश्किल नसीब होता है। वैसे तो आंटी सकीना की अपनी भी बेटी थी जिसका रिश्ता अम्मा ने कई दफ़ा मांगा था, लेकिन आंटी सकीना हमेशा ही उज़र रखते हुए रिश्ते से इनकार कर देती। इसलिए अम्मा ने अब ये बात दिल में बिठा दी थी कि आंटी सकीना से अब उनकी बेटी का हाथ नहीं मांगेगी और भाई का रिश्ता कहीं बाहर ही कर देंगी। आंटी सकीना अम्मा की बहुत अच्छी सहेली थी। यही वजह थी कि अम्मा अपनी सहेली की बेटी को मेरी भाभी बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे वो लड़की एक आंख नहीं बहाती थी। जिस तरह से उसकी माँ चालाक चित्तर थी, इसी तरह वो खुद भी थी। मेरा भाई तो सीधा सादा और शरीफ सा था।
हम दोनों बहन भाइयों में बेइंतहा मोहब्बत थी और ये मोहब्बत आंटी सकीना या उनकी बेटी से हजम नहीं हो पाई। इसलिए मैं आंटी सकीना की बेटी के रिश्ते के हक में तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अम्मा से हमेशा कहती कि आप भाई का रिश्ता कहीं बाहर कर दें, आंटी सकीना के घर से तो बेहतर है भाई कंवारा ही बैठा रहे। अक्सर इस बात पर मुझे अम्मा से खूब डांट पड़ जाती। अम्मा से सारी रुदात सुनने के बाद आंटी सकीना अपने घर की तरफ जाने लगी। तभी मैंने अम्मा से कहा, अब पूरे मोहल्ले में ये खबर आग की तरह फैल जाएगी कि शकील भाई को आज लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं। अम्मा मुझे घूरते हुए कहने लगी कि तुम किसी बड़े छोटे को देख लिया करो, वो तुम्हारी माँ की उम्र की है, कुछ ख्याल कर लिया करो। अम्मा को भी कोई बात समझ नहीं आते थे। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैं समझी कि आंटी सकीना फिर गांव में किसी का पैगाम लेकर आई होंगी। जैसे ही मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर कुछ मेहमान खड़े थे जो भाई को देखने आने वाले थे। मैंने उन्हें घर के अंदर आने को कहा और अम्मा को बताया कि मेहमान आ गए, लेकिन भाई अभी तक नहीं लौटे थे। अम्मा ने मुझसे कहा कि ज़रा अपने भाई को कॉल करके पूछो तो सही कि आज वो कहाँ रह गया है। उससे बताया भी था कि मेहमान आने वाले हैं, फिर भी अभी तक घर वापस नहीं आया। मैंने जल्दी से मोबाइल पकड़ा और भाई के कमरे में चली गई। अम्मा ने मेहमानों को बिठाते हुए मुझसे चाय पानी का इंतज़ाम करने को भी कहा था। मैंने चाय चूल्हे पर चढ़ाते हुए भाई को कॉल कर दी थी। भाई ने पहले तो मेरी कॉल रिसीव नहीं की, फिर अचानक जब मेरा फ़ोन उठाया तो मैंने भाई से पूछा कि आप कब तक घर आ रहे हैं? मेहमान आ गए हैं और वो सब आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तभी भाई ने मुझे बताया कि मैं तो घर के करीब ही हूँ, बस 5 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। मेरे कपड़े ज़रा तैयार कर देना ताकि मैं तैयार हो जाऊँ। मैं मुस्कुरा रही थी और भाई से हंसी मजाक कर रही थी। तभी भाई ने फ़ोन बंद करते हुए कहा कि जल्दी काम कर लो। मैं बहुत खुश थी। मैं दिल में बार बार दुआ कर रही थी कि रब्बे ताला मुझे खूबसूरत सी भाभी से नवाजे, क्योंकि अब मैं उस घर में अकेली रह रहकर थक चुकी थी। अम्मा तो मेरी शादी का ख्याल भी साथ ही रखती थी, लेकिन मैंने अम्मा से साफ अल्फाज में ये बात बोल दी थी कि जब तक मैं 1-2 साल भाभी के साथ एंजॉय नहीं कर लेती तब तक मेरी शादी के बारे में सोचिएगा भी मत। क्योंकि मैं बहुत लाडली थी, इसलिए अब्बा और भाई मेरा भरपूर साथ देते। मैं खुशी खुशी मेहमानों के खाने पीने का इंतज़ाम कर रही थी कि तभी मेरे मोबाइल पर बेल होने लगी। जैसे ही मैंने फ़ोन पकड़ा देखा तो भाई की कॉल आ रही थी। मैंने खुशी खुशी जैसे ही कॉल अटेंड की तो भाई की ज़ारो कतार रोते हुए आवाज़ आई। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं भाई का रोना सुनते हुए बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। मेरे अलग से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। तभी मैंने बार बार भाई से यही सवाल किया कि सब खैरियत तो है, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे और रोते हुए उनकी आवाज़ नहीं निकल रहे थे। मैंने भाई से कहा कि आप खुदा के लिए चुप हो जाएं और मुझे बताएं कि सब खैरियत तो है। तभी भाई ने मुझसे कहा कि मैं घर आकर बात करता हूँ। मैं फ़ोन बंद नहीं कर रही थी, मुसलसल ज़िद कर रही थी कि पहले मुझे बताएं कि सब खैरियत तो है, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? तभी भाई ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ, मैसेज पढ़ो और जब तक मैं घर नहीं आ जाता तुम्हें मेरी कसम अम्मा से कुछ मत कहना। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने फ़ोन काटते ही जल्दी से इनबॉक्स खोला ताकि मैं देख सकूं कि भाई ने मुझे आखिर क्या मैसेज किया है। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद भी जब भाई का मैसेज नहीं आया तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैं बार बार भाई को कॉल कर रही थी, लेकिन भाई का नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। अब तो मेरा दिल बैठे जा रहा था। मैं बहुत घबराहट सी महसूस कर रही थी कि तभी अम्मा ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा कि बेटा चाय पानी ले आओ। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की कि मैं अपने चेहरे पर घबराहट जाहिर नहीं करूं, लेकिन मुझसे ये सब नहीं हो रहा था। तभी मैंने ठंडे पानी के छींटे चेहरे पर मारते हुए खाने पीने का जो एहतमाम किया था वो सब मेहमानों के आगे जाकर रखा। अम्मा ने मेहमानों के सामने ही मुझसे पूछा कि क्या तुमने अपने भाई से बात की है, कब तक आ रहा है वो घर? तो मैंने कुछ ना सोचते हुए अम्मा से ये बात कह दी कि भाई का नंबर बंद जा रहा है। मैं मुसलसल भाई को कॉल कर रही हूँ, लेकिन भाई का नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। मैं नहीं जानती थी कि अब क्या होगा। मैं ये भी नहीं जानती थी कि भाई के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो ज़ारो कतार रो रहे थे, क्योंकि भाई ने मुझे अपनी कसम दे रखी थी, इसीलिए मैं अम्मा से कुछ भी बयान नहीं कर सकती थी। मेरी ये बात सुनते हुए मेहमान एक दूसरे का मुंह देखने लगे और खाए पिए बगैर ही अपनी जगह से उठ खड़े हुए। लड़की के वालिद अम्मा से कहते कि बहन, लगता है आपका बेटा शादी के लिए तैयार ही नहीं था। आप अपने बेटे की शादी वहीं पर करें जहाँ उसकी मर्जी है,
ایسا تو تبھی ہوتا ہے جب لڑکے کو کوئی اور لڑکی پسند ہو اور ماں باپ اسے زبردستی کسی اور کے گلے باندھنا چاہتے ہوں، تبھی لڑکے گھر نہیں آتے اور موبائل بند کر دیتے ہیں۔ اماں ان سب کو روکنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کھائے پیے بغیر نہیں جائیں، وہ آتا ہی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ موبائل کی بیٹری لو ہو گئی ہو۔ لیکن مہمانوں کو کون سمجھاتا کہ اس وقت کوئی بھی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اتنی دیر سے وہ بھائی کا انتظار کر رہے تھے اور بھائی تھے کہ ابھی تک گھر پہنچے ہی نہیں تھے۔ چند باتیں سناتے ہوئے مہمان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اماں مجھ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں یہ سب بات مہمانوں کے سامنے کہنے کی بلا کیا ضرورت تھی؟ یہ بات تم مجھے اندر علیحدگی میں بلا کر بھی کہہ سکتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں دعا کریں سب خیریت ہو۔ بھائی کا نمبر پہلے کبھی بند نہیں ہوا، لیکن آج بھائی کا نمبر مسلسل بند جا رہا ہے، اس لیے دعا کریں کہ سب کچھ خیریت سے ہو۔ اماں میری بات سن کر مہمانوں کے جانے کی پریشانی بھول گئی۔ اب اماں کو بھائی کی پریشانی ہونے لگی۔ اماں بے صبری سے بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اور اماں کبھی دروازے کی طرف دیکھتی تو کبھی موبائل کی طرف دیکھتی۔ میں مسلسل بھائی کو کال کر رہی تھی لیکن بھائی نے اب تک نمبر آن نہیں کیا تھا۔ اب تو مجھے اور پریشانی ہونے لگی۔ اماں بے صبری سے بھائی کا انتظار کر رہی تھی اور میں کبھی دروازے کی طرف دیکھتی تو کبھی موبائل کی طرف دیکھتی۔ میں مسلسل بھائی کو کال کر رہی تھی لیکن بھائی نے اب تک اپنا نمبر آن نہیں کیا تھا۔ اب تو مجھے اور زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ ابا کو کال کریں، ابا سے معلوم کریں کہ کیا بھائی کے ساتھ ابا کا کوئی رابطہ ہے۔ جیسے ہی اماں نے ابا کو کال کی تو کسی اور کی آواز سنتے ہوئے اماں نے مجھے موبائل پکڑا دیا۔ میں نے موبائل پکڑتے ہی جب جاننا چاہا کہ ابا کا موبائل کس کے پاس ہے تو ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ہم انہیں ہاسپٹل لے کر آئے ہیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنی بڑی خبر سن کر میری تو جان ہتھیلی پر آ گئی۔ میری چیخ نکلی تو اماں سمجھ گئی تھی کہ کوئی بات خیریت کی نہیں ہے۔ تبھی اماں نے مجھ سے موبائل لیتے ہوئے اس آدمی سے خود جاننا چاہا۔ اتنے میں اس آدمی نے بھی فون کاٹ دیا۔ تبھی اماں مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہوئی ہے، اس نے کیا کہا ہے، تمہارے ابا کہاں ہیں؟ میں چاہ کر بھی اماں کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ مجھے بھائی نے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ آخرکار یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ سوچ کر فکر ہو رہی تھی کہ ابا کو اچانک سے ہارٹ اٹیک کیسے اور کب آ گیا اور اب ابا نہ جانے کس حالت میں ہوں گے۔ میں پریشانی کے عالم میں صحن میں چکر کاٹ رہے تھے کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دوڑتی ہوئی دروازے پر گئی تو بھائی روتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے اور اماں کو دیکھتے ہوئے چیخیں مار کر رونے لگے۔ اماں بھائی کو ایسے روتا دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ اماں نے دروازے کی طرف نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں اور تم ایسے کیوں رو رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ کیا ہوا ہے؟ بھائی اماں سے یہ کہنے لگے کہ ہم لوگ بکھر گئے، ہمارے سر سے شفقت بھرا سایہ جٹ گیا ہے۔ اماں کو بھائی کی یہ پہلیاں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اماں پریشانی میں بھائی سے کہنے لگیں کہ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، مجھے ٹھیک سے بتاؤ کہ تمہارے ابا کہاں پر ہیں۔ تبھی دروازے پر ایمبولینس آ کر رکی اور اندر سے ابا کی ڈیڈ باڈی کو نکال کر صحن میں رکھ دیا گیا۔ اماں کے اوپر تو جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں نے جیسے ہی ابا کو اس حالت میں دیکھا، بلکہ اماں تو غش کھا کر گر پڑی تھی اور کافی دیر ہوش میں لانے کے باوجود بھی اماں ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میں نے آج سے پہلے ابا کو کبھی بیمار نہیں دیکھا تھا۔ اب ایسی حالت میں دیکھ کر مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں بھی زاروں قطار رو رہے تھے۔ بھائی نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ اب ہم دونوں کو مل کر ہی اماں کا سہارا بننا ہے۔ اگر ہم لوگ ہمت چھوڑ دیں گے تو اماں کو کون سنبھالے گا؟ ہمارے گھر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ ابا کی تدفین کا عمل مکمل ہوا۔ سب مہمان اور گاؤں والے کچھ دن تو گھر کے چکر لگاتے رہے، پھر سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میں اور اماں گھر پر اداس رہتی، بھائی بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ تکلیف تو ظاہر ہے ہم تینوں کو تھی، لیکن بھائی نے خود کو کام میں مصروف کر رکھا تھا تاکہ ان کا دھیان ابا کی طرف نہ جائے۔ میں اماں کا دل بہلانے کی لاکھ کوشش کرتی لیکن اماں ابا کو بھلا نہیں پا رہے تھے۔ ابا نے اماں کو محبت ہی اتنی دی تھی کہ اماں کو ہر وقت ہر جگہ ابا ہی دکھائی دیتا ہے۔ اماں کو جب بھی کوئی بات کرنی ہوتی تو زاروں قطار رونے لگتی اور کہتی کہ مجھے تمہارے باپ نے کبھی اف تک نہیں کہا تھا، کبھی ڈانٹا تک نہیں تھا۔
मैं उसकी कौन कौन सी बात को भुलाऊं? मुझसे तो तुम्हारा बाप भुलाए नहीं भूलता। अम्मा की ऐसी बातें मैं सुनती तो मैं भी रोने लगती। सब लोग हमें तसल्ली देते, लेकिन खाली घर काटने को दौड़ता। ये नुकसान वो था जिसका कोई नेमल बदल नहीं था। वक्त के साथ साथ हमारे जख्म भी भरते चले गए, लेकिन हर खुशी और गमी में अब्बा की बहुत याद सताती। अब्बा के चले जाने के बाद 1 साल तक हमने भाई का कहीं रिश्ता नहीं देखा था। अब्बा की वफ़ात को पूरा 1 साल हुआ था जब मैंने अम्मा से कहा कि हमें अब घर में भाभी लेकर आनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर की उदासी अब भाई की बीवी और बच्चे ही दूर कर सकते हैं। अम्मा को मेरी बात समझ आ रही थी। तभी अम्मा ने कहा कि मैं फिर से किसी रिश्ते वाली से कहती हूँ कि तुम्हारे भाई और तुम्हारा भी कहीं रिश्ता देख ले। मैंने अम्मा से कहा कि मेरा रिश्ता भी मत देखिएगा, मुझे भी आपके और भाभी के साथ वक्त गुजारना है। मेरी अभी उम्र ही क्या है? आप भाई का रिश्ता देखें, उसके बाद फिर मेरा भी देख लीजिएगा। घर के हालात अभी ऐसे नहीं थे कि 2 शादियाँ एक साथ हो पाती। अगर मेरी शादी पहले कर दी जाती तो अम्मा तो घर में बिल्कुल ही तने तनहा होकर रह जाती, और ये बात मुझे कतन मंजूर नहीं थी। इसलिए मैंने अम्मा से यही बात की कि आप पहले भाभी ले आएं ताकि आपको संभालने वाली इस घर में आ जाए। उसके बाद मुझे इस घर से जाने में आसानी होगी। अगर आप मुझे ऐसे ही इस घर से भेज देंगी तो मेरा दिल तो अपने ससुराल में कतन नहीं लगेगा। मुझे तो हर वक्त आपकी ही फिक्र रहती है। इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले एक बेटी को लेकर आएं, फिर अपनी दूसरी बेटी का सोचिएगा। अम्मा को मेरी बात अच्छे से समझ आ गई थी। अम्मा ने यही फैसला किया कि पहले भाई की शादी की जाए और बहू घर में लाई जाए, उसके बाद फिर मेरी शादी करके मुझे रुखसत कर दिया जाए। ज़ोरों शोर से हम लोगों ने भाई का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अम्मा का अभी भी जहन सकीना आंटी की बेटी पर था, लेकिन सकीना आंटी तो 1000 बातें सुना जाती और अपनी बेटी के रिश्ते से साफ इनकार कर देती। मैंने अम्मा को सख्ती से मना कर दिया था कि वो बहुत झगड़ालू औरत है, उसकी बेटी भी उसी की तरह की है। हमें अपने घर में कोई सुकून वाली और इज्जतदार लड़की चाहिए जो हमारे घर को आकर तोड़े नहीं बल्कि जोड़े रखे। इसलिए आप सकीना आंटी से बार बार रिश्ते की मिन्नत करना छोड़ दें। अम्मा के दिल को भी मेरी ये बात छू गई थी। कुछ दिन गुजरे तो पता चला कि गांव में फिर से मेला लग रहा है। ये मेला तो हर 5 साल बाद लगता था, लेकिन पीर बाबा कई साल से उस मेले में नहीं आए थे। तभी अम्मा ने मुझे पता करने के लिए भेजा कि जाओ पता करके आओ कि पीर बाबा इस दफ़ा भी आए हैं या हर साल की तरह इस साल भी पीर बाबा मेले पर नहीं आए। अम्मा ने मुझे बताया कि कैसी उनकी इलायची खाने से अम्मा को औलाद की खुशखबरी मिली थी। मुझे भी अम्मा की बातें सुनते हुए अल्लाह के बाद फिर पीर बाबा की दुआओं पर यकीन हो गया था। वो अल्लाह के नेक बंदे थे, इसलिए उनकी दुआ में इतनी ताकत थी कि अल्लाह ने उनकी दुआ रद्द नहीं की थी और अम्मा को खुशखबरी अता की थी। इस दफ़ा अगर पीर बाबा मिले तो अम्मा रिज़्क और अच्छी बहू के लिए दुआ का कहते। यही सोचते हुए अम्मा ने मुझे पता करने के लिए मेले में भेजा। जैसे ही मेले में जाकर मैंने पीर बाबा का जिक्र किया तो सबने बताया कि पीर बाबा इस दफ़ा आए हुए हैं और शाम तक पीर बाबा वापस भी चले जाएंगे। वक्त ना ज़ाया करते हुए मैंने अम्मा से कहा कि हमें फ़ौरन पीर बाबा से मिल लेना चाहिए। तभी अम्मा मुझे साथ लेकर पीर बाबा के आस्थाने पर चली गई। अम्मा को देखते ही पीर बाबा ने अम्मा को पहचान लिया था। अम्मा ने बताया कि आपकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे 2 बच्चों से नवाजा है और पहली औलाद मुझे मीठी मुराद ही दी थी। पीर बाबा मुस्कुराने लगे और अम्मा से कहने लगे कि अब किस लिए आना हुआ। अम्मा ने आंखों में आंसू लिए पीर बाबा को बताया कि 1 साल पहले मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था। घर के हालात बहुत ख़राब हो गए। उनके होते हुए भी एक वक्त का खाना नसीब होता था, लेकिन अब तो बहुत मुश्किल से वक्त का गुजर बसर होता है। मेरा बेटा जिस काम में भी हाथ डालता है उसी में नुकसान उठाता है। एक तो मुझे अपने बेटे के रिज़्क के लिए दुआ करवानी है और दूसरा मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का रिश्ता किसी अच्छी जगह पर हो और मुझे एक खूबसूरत और सलीकामंद बहू मिल जाए जो हमारे घर को आकर संभाल ले। जब मेरे घर में बहू आ जाएगी तो फिर मैं अपनी बेटी का भी कहीं रिश्ता देखकर इसे भी रुखसत करने वाली बनूं, क्योंकि जब तक मैं एक बेटी घर पर नहीं लाऊंगी मैं इस बेटी को घर से रुखसत नहीं कर सकती। मैं अक्सर बीमार रहती हूँ और मेरे लिए किसी एक का घर में होना बहुत ज़रूरी है।
पीर बाबा ने तसल्ली से अम्मा की सारी बात सुनते हुए अम्मा से कहा कि जा, अल्लाह तेरी मुराद पूरी करेगा, तुझे अच्छी बहू भी अता करेगा और तेरे बेटे को रिस्क भी अता करेगा। पीर बाबा ने कुछ देर के लिए आंखें बंद की और फिर अम्मा से कहा कि फ़िलहाल तो तुम्हारे बेटे को अल्लाह रिस्क अता करेगा, लेकिन तुम्हारे घर के वारे न्यारे तब होंगे जब तुम अपने बेटे की शादी कर दोगी। तुम्हारे बेटे की शादी के बाद तुम्हारे घर में हर खुशी दौड़ कर आएगी। पीर बाबा की बात सुनते हुए अम्मा की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। मेरे भी दिल को बहुत तसल्ली होने लगी थी। तभी अम्मा ने कहा कि पीर बाबा, आप ही कोई रास्ता बताएं, कहीं कोई अच्छी लड़की आपकी नज़र में हो तो मेरे बेटे का रिश्ता करवा दें। पीर बाबा मुस्कुराते हुए अम्मा के सर पर प्यार देने लगे और कहा कि कुछ माह तक मैं दोबारा आऊँगा और अपने साथ एक अच्छा रिश्ता करवाने वाली लेकर आऊँगा। अब तुम्हें रिश्ता तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। तुम अपने बेटे की शादी वहीं करना जहाँ तुम्हें मैं कहूँगा। उसके बाद तुम अपने घर के बदलते हुए हालात खुद अपनी आंखों से देखोगी। अम्मा ने पीर बाबा की बात सुनी तो खुश हो गई। अम्मा को पीर बाबा पर बहुत यकीन था, इसलिए अम्मा ने पीर बाबा से हामी भर ली कि अब जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। पीर बाबा की बातें सुनकर मुझे थोड़ी सी उलझन होने लगी। तभी मैंने बेसाख्ता पीर बाबा से कहा कि पीर बाबा, अम्मा की बहू अच्छी होने के साथ खूबसूरत भी हो, क्योंकि मुझे खूबसूरत भाभी चाहिए। मैंने अपनी सहेलियों से ये बात कह रखी है कि पूरे गांव में मेरी भाभी जैसी कोई और भाभी नहीं होगी। पीर बाबा मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और मुझसे कहा कि जा, तुझे तेरे मुताबिक खूबसूरत भाभी मिलेगी। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें चांद सी भाभी मिले। मैं बहुत खुश हो गई। हम दोनों माँ बेटी पीर बाबा से मिलने के बाद घर वापस चली आई। अम्मा ने जो पीर बाबा ने पढ़ाई करने के लिए उन्हें बताई थी वो पढ़ाई शुरू की। देखते ही देखते भाई का चावलों का कारोबार अच्छा होने लगा था। अब भाई ने अपने अलग से काम शुरू कर लिया था। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना कमाने लग गया था कि घर का गुजर बसर होने लगा था। कहाँ हमें एक वक्त की रोटी भी खाना नसीब नहीं होती थी, कहाँ अल्लाह के फजलो करम से हमें 2 वक्त का खाना आसानी से नसीब हो जाता। घर के हालात बदलने लगे थे। अब तो मुझे भी पीर बाबा की दुआओं पर यकीन हो गया था। मैंने भी इस बात को मानना शुरू कर दिया था कि अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआएं रद्द नहीं करता। कुछ माह गुजरे तो पीर बाबा घर तशरीफ़ लाए। अम्मा पीर बाबा को अपने घर देखकर बेहद खुश हुई और पीर बाबा से कहा कि मेरे बेटे का काम अब पहले से ज़्यादा बेहतर है। पीर बाबा ने अम्मा से कहा कि मेरे पास एक रिश्ता है, तुम आज अभी उस लड़की से अपने बेटे का निकाह करवा दो। मैं पीर बाबा की बात सुनकर परेशान सी हो गई, क्योंकि मुझे अपने घर को दुल्हन की तरह से जाना था, सारी रसूमात अदा करनी थी। पीर बाबा ने अम्मा से कहा कि आज का दिन तुम लोगों के पास है, कल मैं खुद उस लड़की को साथ लेकर आऊँगा और शकील और सुहा का निकाह मैं खुद पढ़ाऊँगा। अम्मा ने पीर बाबा की बात सुनते ही हाँ में सर हिला दिया। अम्मा पीर बाबा को किसी सूरत इनकार नहीं कर सकती थी। अम्मा ने भाई को फ़ोन करके घर आने को कहा। जैसे भाई आया तो अम्मी ने भाई से कहा कि जैसी भी तैयारी होती है वैसी करो, सुबह तुम्हारा निकाह है, हमें बारात लेकर पीर बाबा के आस्थाने पर जाना है, वहीं से तुम्हारे लिए दुल्हन आनी है। भाई अम्मा से कहने लगा कि ये कैसी शादी है, ऐसा भी होता है क्या? तभी अम्मा ने कहा कि किसी किस्म की कोई बहस नहीं करनी, क्योंकि पीर बाबा ने इस रिश्ते के बारे में आगाह किया है। मैं तो पीर बाबा की बात मानते हुए शादी के लिए हाँ कर आई हूँ, अब मेरी लाज रख लेना। भाई ने अम्मा से कुछ ना कहते हुए हाँ में सर हिलाया और कहा कि जैसे आपकी मर्जी। मुझे अब घर को दुल्हन की तरह से जाना था। भाई ने मुझसे मेरे कपड़ों के बारे में पूछा और घर की सजावट की तैयारियां शुरू कर दी। भाई का दोस्त भी भाई के साथ मिल गया और सारा घर दुल्हन की तरह सजा दिया। भाई के कमरे को भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया। मुझे साथ ले जाकर भाई ने जिस चीज़ पर हाथ रखा वही चीज़ दिलाई। खुद समझ नहीं रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। अम्मा ने भाई से पूछा कि ये सब तुम कैसे कर रहे हो, इतनी रकम तुम्हारे पास कहाँ से आई है? भाई ने कहा कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, मैंने कुछ पैसे बचा रखे थे, वो इस्तेमाल में आ रहे। अम्मा को पीर बाबा की बात याद आ गई कि जब मेरी बताई लड़की से शादी के लिए हाँ कर दोगी तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। अम्मा मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ये सब पीर बाबा की दुआओं का नतीजा है। अब धूमधाम से हम लोग बारात लेकर पीर बाबा के आस्थाने पर चले गए। भाभी का चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। पीर बाबा ने भाई और भाभी का निकाह खुद पढ़ाया। निकाह पढ़ाने के बाद पीर बाबा ने अम्मा से कहा
कि आज के बाद तुम्हारी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। हम लोग भाभी को लेकर घर आ गए। घर आकर जब भाभी को कमरे में बिठाया तो मैंने बहुत चाहत से भाभी का घूंघट उठाने के लिए कहा। जैसे ही घूंघट उठाया तो वाकई वो चांद का टुकड़ा लग रही थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। जैसी भाभी मैंने सोची थी उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ने अता की थी। मैं उसे देखकर देखती रह गई। अम्मा ने भी घर आकर भाभी का चेहरा देखा। हम लोग तो बहुत खुश थे। अम्मा पीर बाबा को ढेरों दुआएं दे रही थी। सुबह हुई तो अम्मा ने मुझे उठाया कि जल्दी से घर की सफाई सुथराई कर लो, अपनी भाभी को भी उठाओ और उससे बताओ कि आज तमाम गांव वाले और रिश्तेदार मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाए। मैं बहुत खुश थी, मगर आज मुझे घर में अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत ने घर को घेरा हो। उन बातों पर गौर न करते मैं अपनी सहेलियों को भाभी दिखाने वाली थी। शादी इतनी शानदार थी कि गांव वाले सब हैरान थे। आंटी सकीना ने तो अपने दांतों के नीचे उंगलियां दबा रखी थी। वो तो सब कुछ ये सजावट देखकर बेहद हैरान थी और पछता रही थी कि काश मैंने अपनी बेटी शकील के साथ ब्याह दी होती, मगर किस्मत में जो लिखा था वही होना था। मैंने सबसे पहले घर को साफ सुथरा किया और फिर भाई के कमरे की तरफ जाने लगी। भाभी कमरे में अकेली थी। कमरे में पहुँच कर मेरे कंधे वजनी होने लगे और अजीब से एहसास ने घेरा। मैं डर गई। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो आईने के सामने खड़ी भाभी देखकर मेरे तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि भाभी की तो शक्ल ही बदली हुई थी। वो किसी और ही शक्ल में खड़ी सज संवर रही थी। उसे इस हालत में देखते हुए मेरी जान निकल गई। मैंने खौफ के मारे दरवाज़ा बंद किया और अम्मा से इस बात का जिक्र नहीं किया। मैं घबराई हर तरफ फिर रही थी। वक्त गुजर गया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये सब मेरे दिल का वहम हो। मैंने एक बार फिर से भाभी के कमरे का दरवाज़ा चुपके से खोला तो भाभी फिर उसी रूप में नजर आई। मेरी तो चीख निकल गई। मैं बहुत परेशान हो गई। मेरी चीख सुनते ही भाई और अम्मा भी कमरे में दौड़े आए। भाभी को देखकर मैं बेहोश हो गई। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। अम्मा मेरी हालत को देखकर परेशान हो गई। अम्मा ने पीर बाबा को पैगाम भिजवाया कि घर के चक्कर लगाएं। जैसे ही पीर बाबा घर आए तो उन्होंने एक बंद कमरे में मेरा इलाज शुरू कर दिया। पीर बाबा ने मुझसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा है वो सब हकीकत है, उसमें कोई झूठ नहीं है। मुझे तो पीर बाबा से भी बहुत डर लगा था। मैं पीर बाबा से कह रही थी कि आपने अच्छा नहीं किया मेरे भाई को एक चुड़ैल के साथ निकाह में बांध दिया। पीर बाबा ने मुझे बताया कि वो चुड़ैल नहीं है, वो शायद जिन्नात की बड़ी बेटी है। वो एक जिनजादी है और वो एक ऐसी नेक और पाकीज़ा जिनजादी है जिसके आने से तुम लोगों के घर के हालात दिनों में ही बदलते दिखाई देंगे। पीर बाबा मुझे समझाने लगे कि तुम्हारी माँ ने सारी ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ों का सामना किया है। तुम्हारी माँ 5 वक्त की नमाजी और तहज्जुद गुजार है। उसकी तकलीफ़ देखते हुए मैंने तुम लोगों के लिए सोहा का इंतखाब किया था। सोहा बहुत नेक जिनजादी है। उससे तुम लोगों को किसी भी किस्म का कोई खौफ और ख़तरा महसूस नहीं होगा। वो सबको अपना मान चुकी है और अब वो तुम लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। मैं जैसे पीर बाबा की बातें सुन रही थी मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो रही थी। मैंने पीर बाबा से कहा कि अम्मा को इस बात का इल्म नहीं है। जब अम्मा को इस बात का इल्म होगा तो अम्मा के दिल पर क्या बीतेगी? अम्मा क्या सोचेंगी कि आपने एक जिनजादी से मेरे बेटे का निकाह करवा दिया। पीर बाबा ने मुझे समझाया कि तुम परेशान मत हो, तुम लोग खुद देखोगे कि घर में क्या तब्दीलियाँ आएंगी। पीर बाबा कहने लगे कि मेरा कोई मफाद नहीं है, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे घर के लिए किया है। अगर फिर भी तुम्हें बाहर जाकर सबको हकीकत बयान करनी है तो शौक़ से बयान कर सकती हो। जैसे ही तुम लोग यहाँ से जाने को कहोगे सोहा चली जाएगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, वो अकेली नहीं जाएगी। तुम्हारा भाई उसकी मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार हो चुका है कि वो उसके बगैर एक पल भी सांस नहीं ले सकता। वो तुम्हारे भाई को साथ ले जाएगी। बेहतरी इसी में है कि भूल जाओ कि वो जिनजादी है। पीर बाबा की बात सुनते मेरा सर वज़नी होने लगा, मेरा जिस्म कांपने लगा। तभी मैंने मुड़कर देखा तो मैंने भाभी को अपने करीब पाया। भाभी मुझे देखकर बेहद परेशान नज़र आ रही थी। मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि दोबारा कभी अपनी असली हालत में नहीं आऊँगी, लेकिन खुदा के लिए घर वालों को मेरी हकीकत के बारे में बिल्कुल मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों से अलग होकर रहूँ। तुम्हारा भाई अब इस जगह अकेला नहीं रह सकता, इसलिए मेरी तुमसे इल्तिजा है कि मेरा साथ दो। फिर देखो कि मैं तुम लोगों के हक़ में कैसी हूँ। अगर मुझसे कोई गलती या कोताही हुई
तो तुम्हें पूरी इजाज़त है कि तुम सब घर वालों के सामने मेरी हकीकत बता देना। मैं तुमसे कभी खफा नहीं होगी। सोहा की बातें सुनते मेरे दिल की धड़कनें मज़ीद तेज़ होती जा रही थी। लेकिन मैं सब कुछ सोचने के बाद पीर बाबा और सोहा पर एतमाद करने लगी थी। तभी मैंने कहा कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं करूँगी, लेकिन आप भी वादा करें कि मेरे भाई या माँ या इस घर को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। सोहा भाभी ने मुझे अपने सीने से लगाते हुए मेरा माथा चूमा और कहा कि कभी सोचना भी मत। भाभी की शादी को कई साल गुजर चुके हैं। हमारा गांव में एक छोटा सा घर होता था और अब गांव में सबसे बड़ी कोठी भाई की है। भाभी की जादुई ताकत से मेरा रिश्ता बहुत ही ऊंचे खानदान में हुआ और मैं अपने घर में राज कर रही हूँ। मेरी माँ ने हाथ जुमरे अदा किए और रिस्क की इतनी फरावानी है कि अम्मा दोनों हाथों से अल्लाह की राह में देती हैं, मगर कभी कमी नहीं हुई। मुझे आज भी भाभी से किया हुआ वादा याद है और मैं आज तक उस वादे को निभा रही हूँ। और भाभी ने भी शाहे जिन्नात की बड़ी बेटी होते हुए जो वादा मुझसे किया था, भाभी भी आज तक उस वादे को निभा रही हैं। हम सब हंसी खुशी प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं।